In this session, I'm going to discuss with you regarding modern sources of Hindu law. As we start discussing the sources of Hindu law, we have covered ancient sources. Those who have not watched this session, on the top you see the link of ancient sources of Hindu law. There were mainly 4 sources and in detail I have made also the last session regarding custom, जो एक तरीके का ancient source होता है. Customs कैसे इसका एक part है, custom हमारे हिंदू लॉ में क्या रोल प्ले करता है, that link is also given on the top. Go and watch this session. This is very important. Now coming to the other diversification of modern sources of Hindu law. As there are ancient sources, same way Hindu law में हमें कुछ modern sources देखने को मिलते हैं जिनसे हमने अपना हिंदू कानून derive किया है. Main provisions we have made through these sources. So in this session we are going to discuss modern sources. And below is our official mail address. Dear students, this is our contact number. You can reach us through these ways and tell us your queries, your doubts. If you want notes, handmade notes, तो वो भी आपको यहाँ पर अपना order देना होगा, and we are providing that to many of the students. Now, the very first modern source is justice, equity and good conscience. Justice, equity, what are these things? कि आज के टाइम में इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड आवर जजमेंट्स और आवर हिंदू लॉ शुड नॉट बी रिमेन टू द एंटीक जो प्रोविजंस चले आ रहे हैं, एंशियंट जो कल्चर था हम उसी को फॉलो करते आ रहे हों, या वट एवर द जजमेंट्स दैट आर मेड एट दैट टाइम, दे शुड समटाइम्स कांट बी फॉलोड इन दिस वे. आज के मॉडर्न वर्ल्ड में उनको कैरी करना इट्स वेरी difficult. So what basically this source says, that sometimes in the situation of difficulty or when you are not able to decide which one to follow, whether ancient sources or the justice or equity, then we should go for justice and equity. Where जज को ऐसा लगता है, इट सीम्स टू हिम कि यहाँ पर मुझे एज अ रोल ऑफ जज की तरह प्ले करना है और मुझे एक ऐसा डिसीजन देना है जिसमें कि जस्टिस शुड बी द सुप्रीम प्रायोरिटी, देन येस ही शुड गो फॉर दैट ऑप्शन. सो what this source says basically, in the absence of any specific law, कोई ऐसा सिचुएशन आई है या ऐसा केस लॉ है जिस पर कि हम कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोविजन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर उस स्मृतिज एंड इवन द एंशिएंट सोर्सेज में इसके रिगार्डिंग कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं दी हुई है, और इफ द सिचुएशन इज लाइक conflict between the smritis, then what should a judge do? The principle of justice, equity and good conscience would be applied, where it seems yes it would be the best equity, it would be the great justice to the party, then you should go for that option. हम इसके लिए एक केस देखते हैं, जैसे the Supreme Court has observed in which case, गुरुनाथ versus कमलाबाई. इस केस में क्या बोला गया था, इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्लियर शास्त्रिक टेक्स्ट, हमारी जो स्मृतिज है, स्मृतिज मैंने आपको बताया था अभी जस्ट जो एंशिएंट सोर्स कवर करके आए हैं, उसमें क्या था, द वर्ड्स ऑफ सेजेस, सेंट्स जो इतने टाइम से भक्ति कर रहे हैं, उनके जो वर्डिंग्स हैं उनको हम स्मृति में कंक्लूड करते हैं. तो अगर वहाँ पर there is absence regarding that text, the court have the authority to decide the case. यहाँ पर आपको केस कैसे डिसाइड करना, on the principles of justice, equity we say and good conscience. That's the first source. Coming to the next one, that is precedent. Precedents क्या होते हैं? Precedents को अगर हम समझे तो, so precedents is called to be a source of Hindu law in two senses. How? फर्स्टली हम प्रेसिडेंट्स को लेकर चलते हैं, ऑल द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड द रूल्स ऑफ हिंदू लॉ हैव नाउ बीन इम्पोर्टेड इन केस लॉज. प्रेसिडेंट्स होती हैं जो लास्ट केस लॉज रहे हैं, हम पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, क्या केस उस टाइम पे था, पार्टीज के बीच में क्या चल रहा था, नो, वी जस्ट फ्रेम इंपॉर्टेंट केस लॉज. हम केस स्टडी की तरह केस लॉज होते हैं उनको पढ़ते हैं, वहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं, देखते हैं उस सिचुएशन में एक जज द्वारा क्या जजमेंट दी गई थी, एंड देन वी ट्राई टू उन कंक्लूजन्स को, उन जजमेंट्स को यहाँ पर लागू करने की सोचते हैं. वी ट्राई टू अप्लाई देम
in that situation. So in such matters recourse to the original sources is not necessary. ये नहीं कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग में जाओ और जो भी ओरिजिनल सोर्स था उसको पढ़ो, फिर से निकालो क्या क्या लिखा हुआ है. इट्स नॉट लाइक दैट. रेफरेंस टू द लीडिंग डिसीजंस इज इनफ. आप जब आपने कोर्ट में कोई भी अपनी जजमेंट दे रहे हो तो आप साथ में लीडिंग डिसीजंस का एक कंक्लूजन के साथ हेल्प ले सकते हो. क्या उस टाइम पर क्या क्वेश्चन थे और उनको क्या प्रॉब्लम्स आई और उनको कैसे टैकल किया गया. So in this sense, precedents or case law is the source by and large of most of the law rules and principles of Hindu laws. Previous held case laws जो हैं उनको हम क्या करते हैं यहाँ पर इंक्लूड करते हैं. सेकेंड सिनेरियो में अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट सोर्स ऑफ लॉ इसलिए भी हैं दैट बाय द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस जो हमारी डॉक्ट्रीन्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कैसे उनको फॉलो किया गया है, कैसे हम कोर्ट में उनको लागू कर रहे हैं, दिस टाइम मॉडिफाइड. And now altogether new principles, doctrines and rules have been introduced. So that's why also the past laid down case laws need to be applied right now. I hope you are understanding. Coming to the third modern law is judicial decisions. Judicial decisions, the decisions given by our judges. जुडिशियल अथॉरिटी द्वारा क्या डिसीजन लिया गया उसको हम आगे अप्लाई करते हैं. सो जुडिशियल डिसीजंस ऑन हिंदू लॉ आर समटाइम्स स्पोकन एज द सोर्स ऑफ लॉ. ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हिंदू लॉ आर नाउ टू बी फाउंड in the law reports, and to this extent it may be said that the decisions on Hindu law superseded the commentaries. Commentaries भी एक तरीके की यही थी जिसमें हम क्या देखते हैं कि what actually the the authors or particularly the persons who are experts. कमेंट्रीज वही होती है ना. कमेंट्रीज का मतलब हमने किया था ओल्ड सोर्सेज में, एंशियंट सोर्सेज जब हम कर रहे थे. दीज आर एक्चुअली द वर्ड्स, द एक्सपीरियंसेस ऑफ द एक्सपर्ट्स. एक्सपर्ट्स की क्या राय है. अब इसको रिप्लेस कर लिया है जुडिशियल डिसीजंस ने. ये क्या है, ये भी वही पर्सन है जो जुडिशियल अथॉरिटी में होते हैं और वो इसमें अपनी क्या राय दे रहे हैं उस राय को इम्प्लीमेंट किया जाता है. इन श्री कृष्ण सिंह मथुरा अहीर, ये केस है श्री कृष्ण सिंह मथुरा अहीर. इट वॉज ऑब्जर्व्ड क्या दैट इन अप्लाइंग हिंदू लॉ द जज शुड नॉट इंट्रोड्यूस हिज ओन कंसेप्ट्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स बट शुड एनफोर्स द लॉ एज डिराइव्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑथोरिटेटिव सोर्सेज. आप एकदम से खुद से कोई नई बात नहीं बना सकते हो. आप खुद से कोई नया प्रिंसिपल नहीं दे सकते हो, नया कंसेप्ट नहीं लागू कर सकते. वी हैव रिलीजन, वी हैव सोसाइटीज. सो व्हाट वी हैव टू यूज इज कि ये जो पर्टिकुलर आप डिसीजन देते हो वो किसी रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी द्वारा लिया गया है, जैसे कि स्मृतिज एंड कमेंट्रीज. ओके, उनको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है हाई कोर्ट में. देन लास्ट वी हैव लेजिस्लेशंस. लेजिस्लेशंस क्या होती हैं. स्टेट लेजिस्लेशन है हमारे पास, सेंट्रल लेजिस्लेशन है, द पार्लियामेंट बेसिकली उनके द्वारा कैसा कानून पारित किया जाता है. जैसे अभी आपने देखा हो पार्लियामेंट हैज़ जस्ट पास्ड व्हाट, ट्रिपल तलाक, है ना, बैन ऑन दिस. तो वो क्या था, सेवरल इनेक्टमेंट हैड कम इनटू फोर्स. काफ़ी ज़्यादा हियरिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं लेजिस्लेशन में. और जब एक बिल पारित किया जाता है तो उस बिल में कितने लोग अपनी कंसेंट देते हैं, जो मेजॉरिटी आपके लोग आपके बिल को पारित करवाने में आपका साथ दे रहे हैं, इसका मतलब दे आर रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक एंड समवेयर वो पब्लिक की आवाज़ होती है और वहाँ से जो कानून पारित होता है वो लेटर ऑन जाकर एक लॉ का रूप ले लेता है. सो विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड केप्ट कमिंग आफ्टर ब्रिटिश डिपार्टमेंट, बहुत ज़्यादा इनेक्टमेंट्स चेंजेस होते रहे. सो दीज लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स जो आती हैं, जो पार्लियामेंट द्वारा पारित की जाती हैं, विच डिक्लेयर्ड, एब्रोगेट और मॉडिफाई द एंशिएंट रूल्स. जैसे आपने देखा हो मैरिज की एज पहले 18 थी बट अब उसको क्या कर दिया गया था, पहले 16 थी आई थिंक, तो 16 को चेंज करके 18 किया गया एंड नाउ इट्स 21. So that's what the changes made by our legislations. So Hindu Law Committee appointed in 1941 recommended that this branch of law should be codified in gradual stages. जैसे जैसे environment change हो रहा है हमें अपने कानून में भी changes लाने पड़ेंगे और ये changes सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, legislation. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनेक्टमेंट अगर हम अभी देखें तो ईयर 1955-56 में थी क्या, हिंदू मैरिज एक्ट बना,
हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट बना, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया. So these were the things that were made. So with this, dear students, I end up this session. I hope you understood the modern sources of Hindu law. In next session, I'll meet you with another important topic, might be it's schools or under Hindu law. Till then, keep watching, maintain continuity, and stay alert for the next session. Thank you.